या अली मदद। मौलाना नाम की शुरुआत करिए। બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ। બેહદ કૃપાળુ અને બેહદ દયાળુ અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું। આજે તમે તમારા ઇમામ પ્રત્યેની વફાદારી અને પ્રેમની પુનઃ સાબિતી આપવા અહીં એકઠા થયા છો। આ પ્રસંગે તમારી સાથે હોવાના કારણે અમારો આનંદ ઊંડો અને શુદ્ધ છે। અમારા સર્વે વિચારો, અમારી સર્વે આશાઓ અને અમારી સર્વે દુઆઓ તમારે માટે છે। તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ। આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવામાં જેઓ બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને અને પોતાના મઝહબ વિશે માહિતી મેળવવાની જેઓએ નેમ રાખી છે તેઓને અમારા ઉત્તમ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ। તમારો ઈષ્ટ અને ઈમાન જોઈને અમે ઘણા રાજી થયા છીએ। અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું એમ આપણે બોલીએ છીએ। અલ્લાહ કોણ છે? મૌલા મુર્તઝા અલી સહી અલ્લાહ છે। અલ્લાહ મેરે સલવાત પઢો। અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अली सही अल्लाह खुदाविन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमामे फरमाव्યું, ઈમાન અમૂલ્ય વસ્તુ છે અને ધણીને પ્યારી છે। અમારા દાદા હજરત મૌલા મુર્તઝા અલીને મોહમ્મદ નુશેરી અલ્લાહ કહેતો હતો। તેને 70 વખત કતલ કરવામાં આવ્યો તો પણ તેણે અલી અલ્લાહ કહ્યા કર્યું। પછી હુકમ આવ્યો કે આ સાચો મોમન છે અને એની ઓલાદ પણ સચ્ચાઈવાળી થશે। આ મોમન અને એની ઓલાદને કયામતમાં પૂછાણું નથી। આટલો દરજ્જો તેને તેના ઈમાનના અંગે મળ્યો હતો। જેનું ઈમાન ગયું તેનું બધું ગયું, જેનું ઈમાન સલામત રહ્યું તેનું સગળું સલામત રહ્યું। માટે પોતાના ઈમાનમાં કદી ખલલ થવા દેશો નહીં। અલ્લાહ મેરા સલવાત પઢો। અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुर कह रे धर्म तो साचो ईमाननो ईमान साचो जान। जे ईमान लावशे फरमान सु ते दास અમારા જાણ રે ભાઈ તે દાસ અમારા જાણ। હાય જિંદા શાહ પીર પાયા। એ જી અલી તે તો સહી અલ્લાહ કહીએ, તેમાં ઓછો નહીં રે લગાર। અમે એને માનીયો સિદકશું। એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર ચેતો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે हाय जिंदा शाह पीर पाया। या अली बिलुत्फिक अदरिकनी। ओ अली તમારી રહેમતથી અમારી મદદે પહોંચો। મૌલા મુર્તઝા અલીની મદદ આપણે માગીએ છીએ। મૌલા મુર્તઝા અલી કોણ છે? મૌલા મુર્તઝા અલી છે તે ઇલ્મના દરિયા છે। મૌલા મુર્તઝા અલી સહી અલ્લાહ છે। અલ્લાહ એટલે ખુદા। મુર્તઝા અલીએ ફરમાવ્યું છે કે જેણે પોતાને ઓળખ્યો તેણે જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો। હાજર ઇમામને ઓળખીને ઇબાદત કરે તેની જ ઇબાદત કબૂલ થાય, કામ આવે અને સગળું સારું થાય।
પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તે સારું. તમારો રૂહ એક નદીની મિસાલ છે, અમે એક દરિયો છીએ. તમારા રૂહનો આખરનો છેડો દરિયામાં, એટલે કે અમારા પોતામાં છે. तो शाहिद आपको गुजराती समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई ऐसी चीज़ हो तो मुझे पूछ लेना बराबर. તમે તો નસરીન બેન ને ગુજરાતી જાણો છો, રાઈટ? બીજા બધા જાણે છે. અચ્છા, અહીંયા કોઈ એવું છે કે ખાલી આજે જ ઇલમ 40માં છે પછી નથી આવવાનું, રાત્રે કે કાલે? આપ બાદ में नहीं आने वाले हो, राइट? ओके, आप તમે આવવાવાળા છે, રાઈટ? તમે બધા આવવાવાળા છો. તો श्योर नहीं हो, राइट? नहीं, इनको पता नहीं है कि रातना छे. पता भी नहीं कितने बजे जमात करने के बाद. हाँ तो 6 है आज से, राइट? जमात खाने के बाद वहीं पर अपना आप कंफर्टेबल हो, टाइम हो, बराबर. पहले फैमिली देखना बराबर, नहीं पहले फैमिली बच्चे वगैरह वो उसको ख्याल में रखना, राइट? तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप ना भी आ पाओ, राइट? हम लोग दुआ करते हैं कि आप आओ, लेकिन जब भी इलम मिजालिस होती है तो मैं यही पूछता हूँ पहले कि लैंग्वेज का किसी को कोई प्रॉब्लम है, राइट? तो माशाल्लाह पहले हम एटलांटा आए तो 45 लोग थे इलम मिजालिस. तो एक बार गुजराती में, एक बार उर्दू में वॉइस की थी ख्याल मुझे. और ये भी पूछता हूँ कि कोई ऐसा है कि आज ही आने वाला है, बाद में नहीं आने वाला है, तो मैं पहले तो એમના સાથે વાત કરી લો, રાઈટ? કારણ કે કદાચ એમને ટાઈમ ના મળે, શાહીન બેન ના આવી શકે ને. नहीं, उनसे बात करूँगा. तो आपसे पहले बात करता हूँ. तो मैं स्टार्टिंग में तो मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन તમે ગુજરાતી તો જાણો છો, રાઈટ? વાત કરી લીધી. તો તમે તો આપણી રેકોર્ડિંગ સાંભળો છો ઇલમ મિજાલિસની, રાઈટ? અને હું લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યો ત્યારે તમને નહોતો મળ્યો, રાઈટ? નસરીન બેન તમને નહોતો મળ્યો, રાઈટ? અચ્છા, તો તમે એટલાન્ટામાં જ હતા લાસ્ટ ટાઈમ 2022માં? अक्टूबर 26 में आया था. मुझे 2 साल हुए यहाँ पे? ओके इंडिया हैदराबाद. ओके. અને નસરીન બેન તમે અહીંયા છો એટલાન્ટામાં? કેટલો ટાઈમ છે? 5 દિવસ થયા છે. ઓકે, એલાબામામાં. સહી 5 દિવસ किया સહી. नहीं 8-10 દિવસ થઈ लास्ट संडे तो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे थे. सही. 15 દિવસ થઈ ગયા સમજો ને. તો બાકી અલાબામામાં હતા. તો શાહીન બેન ગુજરાતીમાં વાત કરું, બરાબર? તો તમે આ રીતે કદી ઇલમ મિજાલિસમાં બેઠા છો? આ રીતે પર્સનલી કદી નથી બેઠા, રાઈટ? તો હું કોઈ બી જ્યારે આ રીતે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ બેસતું હોય ને, તો હું એને સ્ટાર્ટિંગમાં 2 ચીજો સમજાવું છું કે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એ આપણે શ્યોર હોવા જોઈએ કે આપણે સાચું કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? અને આ ચીજ ફરમાનમાં છે. તો શું થાય કે ખુદાના ખાસ્તા કદાચ આપણા દિલમાં કાલે સવાલ પેદા થાય, રાઈટ? કે આપણે આ કર્યું અને કરી રહ્યા છીએ, કરશું, તો એ ફરમાનમાં છે, આ ચીજો આપણા મતલબના અંદર છે, આપણે શ્યોર હોવા જોઈએ, રાઈટ? તો આપણું ઈમાન મજબૂત રહે, બરાબર? અથવા કદાચ આપણે સમજી લીધું હોય પણ આપણી પાસે એ ઇલમ ના હોય. દાખલા તરીકે મોલાએ ફરમાયું કે જે દિનનો પાયો, દિન એટલે સમજ, જો જે દિનનો પાયો અક્કલ ઉપર, તો અક્કલ શું છે કે ઇન્સાનની અક્કલનું મૂળ પણ ઇમામની અક્કલ છે. તમારે ઇમામની અક્કલ મુજબ ચાલવું જોઈએ. પછી મોલાએ ફરમાવ્યું તમારે અમારા ફરમાન પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. તો અક્કલનું જે મૂળ છે ને એ ઇમામની અક્કલ એટલે ફરમાન છે. તો જે દિનનો પાયો અક્કલ ઉપર નથી રચાયો તે આસ્તે આસ્તે ઘસાઈ જશે અને બિલકુલ રહેવા પામશે નહીં. તો આપણી જે સોચ છે ને, જે સમજ મઝહબની, એ ફરમાનથી પ્રૂફ થવી જોઈએ, સાબિત થવી જોઈએ. તો આપણને ઈમાનમાં વધારો થાય કે હા. અને કોઈ બહારથી આપણને પૂછે તો આપણે એને ફરમાનથી જવાબ આપી શકીએ કે જો આ અમે કરીએ છીએ ફરમાનથી છે. પણ આપણી પાસે એવું ઇલમ ના હોય તો આપણે બાજી ખાઈ જઈએ, રાઈટ? કોઈ આપણને વસવસામાં નાખે, શકમાં નાખે કે તમે આ લોકો શું કરી રહ્યા છો, રાઈટ? તો આપણી પાસે એનો જવાબ ના હોય તો પછી આપણને બી શક થાય, બરાબર? તો આપણે આ જે કરી રહ્યા છીએ એ મૌલાના ફરમાનમાં છે. કેવી રીતે છે? તો કલામના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું, કલામે મૌલા તમે પૂરી બુક વાંચો ને તો એના અંદર ઇલમ ટોપિક છે ને, એના અંદર કલામ છે કે इलम मिजलस तो ऐसी भाई जैसी बहस केरी वाड़ी, जो दुनिया में है बहस देखना चाहो तो इलम मिजलस में बैठो दाढ़ी, કે બહેસ થઈ જગા પાકું કી તો બહેસ ચાહો તો રાખો પાકી, તો બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોય સી એ ફરમાયા કૌસરે સાકી. बराबर? तो बहस શું છે? જ્યાં दीदार છે ત્યાં बहस है. तो ये हम दीदार में बैठे हैं मौला के. और अगर आपको दुनिया में दीदार देखना है तो मौला ने फरमाया कि इलम मिजलस में बैठो दाढ़ी,
इसका इतना बड़ा मर्तबा है, बराबर। तो ये कलाम से साबित है, मौला ने खुद फरमाया, राइट। और हर इमाम मौला मुर्तज़ाली है। जब हम इमाम तो रूह है, राइट, इमाम का रूह है, बराबर। कई बार क्या डिस्कशन होता है कि ये तो पुराने इमाम का फरमान है, पहले इमाम का फरमान है, लेकिन करीम हाज़िर इमाम का फरमान है कि रूहानी बाबतों में कोई फेरफार थतो नहीं। जो मजहब की स्पिरिचुअलिटी है ना, उसमें फरमान में फेरफार नहीं होते हैं। लेकिन मौला ने फरमाया कि અમારા કોમી જિંદગીમાં ફેરફાર થવા જોઈએ। દુનિયાવી બાબતો માટે ઇમામ પોતે નિર્ણય લે છે અને જુદા જુદા વિસ્તારોમાં અમે ફેરફાર કરી રહ્યા છીએ, પણ અમારે ભારપૂર્વક જણાવવું જોઈએ કે મજહબી સિદ્ધાંતોમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। अभी जब आप कलाम बोलोगे ना, तो आपको शायद कोई पूछेगा कि भाई ये तो पहले जोमे का फरमान है, अभी तो हम 1400 साल हो गए, लेकिन रूहानी बाबत में कोई फेरफार थतो नहीं। करीम हाज़िर इमाम ने फरमाया, राइट। और एक मौला मुर्तज़ाली का कलाम है कि इल्म मिजलस में ऐसा मिलना जो शक्कर मिलती है संग दूध, जब इल्म में हिल मिल जावे तब पावे दिल का मकसूद। मन अरफ का भेद, मन अरफ यानी खुद के रूह की पहचान, वो भेद इल्म में सो पीर कामिल से पावे। रैन दिन मिलो जाए इल्म मिजलस में तो भेद मुर्शिद बतलावे। तो 1-2 घंटे मिजलस में बैठते हैं, फरमान पढ़ते हैं, याद करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे रूह को आदत हो जाती है। तो सोए भी होते हैं ना, तो पूरे दिन के दौरान तो हमारी बॉडी काम करती है, राइट। इल्म पढ़ने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, किताब उठाते हैं, आँखों से पढ़ते हैं, ज़बान से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से याद करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, राइट, सोचते हैं उस पर। लेकिन हम जब सोए होते हैं ना, तो फिर सदैव माँ बाप ने बोला कि माहे वर्षे अमृत नूर के नूर माहे खेलजो, के अंदर नूर की बारिश हो रही है। और फरमाया कि क्या जगमग जगमग थाय छे कि वर्षे छे मोती रे, ऐसी रोशनी हो रही है और मोती बरस रहे। तो कौन से मोती बरस रहे? मौला ने फरमाया જ્યારે અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડીએ છીએ ત્યારે મોતીઓના ઢગલા આપીએ છીએ। तो रात को हम सोते हैं तो एक स्टेज आता है, राइट, कि जैसी हमारी नींद। तो कई लोगों को थोड़ा शोर होता है तो उठ जाते हैं, कई लोग ज़्यादा आवाज़ होता है तो भी उनको पता नहीं चलता है, राइट। तो हमारा जिस्म काम नहीं करता है, राइट, ओके। तो इल्म के रिलेटेड जो पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, फिर भी हमारे दिल में ऐसा लगता है कि पूरी रात फरमान मुबारक चल रहे थे। तो ये निशानी मौला ने फरमाया कि रैन दिन, रात और दिन मिलो जाए इल्म मिजलस में तो भेद मुर्शिद बतलावे, राइट। तो उसके लिए फरमाया कि मुशरक मन तो काफर कहिए, मोमन दिल कुरान। कुरान क्या है? फरमान है, इल्म है। तो हमारा दिल इल्म हो जाता है। तो बस मोमन ना ख्याल, विचार, बातून सर्वे साफ જોઈએ, કાંઈ પણ એમ ના જોઈએ। મોમનનું મોઢું બગીચા મિસાલ છે, તેમાંથી ફૂલોની खुशबू निकल जाए, तो ये खुशबू निकलती है, राइट। मौला के फरमान मुबारक हमारे ज़बान पे आते, सोए होते हैं तो भी वही बिरयानी खाई होती है ना, तो डकार बिरयानी का आएगा, राइट। कड़ी खाई होगी, लाख कोशिश करोगे तो बिरयानी का डकार नहीं आएगा, राइट। तो हम जैसा पूरा दिन हमारा गुजारते वही हमारे ख्यालों में बसता है, राइट। तो ये 2 कलम इल्म मिजालिस के लिए मौला ने फरमाया, राइट। ये तो मौला मुर्तज़ाली के जोमे की बात हुई, राइट। लेकिन मौला मुर्तज़ाली ने अपने 48वें जोमे में हज़रत इमाम आका सुल्तान साहब ने क्या फरमाया कि नानी टोळीओना मुखी साहेब અને કાંબડિયા સાહેબ પંજે ભાઈઓના ઘરે જાય અને સત્સંગ તરફ તેમનું વલણ ખેંચે। તેઓ ઘરે ના મળે તો દુકાને જાય। આ રીતે પંજે ભાઈઓને મળવાની રસમ રાખવી જોઈએ। तो सत्संग शब्द हिंदू लोग ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा भी हिंदू थे। तो इल्म मिजाली सत्संग में कोई डिफरेंट नहीं है। सत यानी हक। तो मौला ने फरमाया અમે મર્દે દરવેશ છીએ, તેથી તમને હક ફરમાન ફરમાવી છે। तो फरमान है वो हक है, उसका संग करना यानी उसके कांटेक्ट में रहना। ऑनलाइन इल्म मिजलस सुनो, रूबरू सुनो, फरमान लिखो, पढ़ो, याद करो, गौर फिक्र करो, ये सब इल्म मिजाली से सत्संग है, राइट। तो मौला ने 48 में जो मैं यहाँ बोला कि हर पंजे भाई को घर पे जाके मिलो, घर नहीं मिले तो दुकान पे जाके मिलो, और इल्म मिजाली सत्संग की ओर उनका ध्यान खींचो। और ये रस्म बना दी थी मौला ने, इस तरह पंजे भाई को मिलने की रस्म रखनी चाहिए, बराबर। तो ये हमारे मजहब में है, लेकिन क्या है कि दिन ब दिन दुनिया बढ़ती जाती है तो ट्रेडिशन एक ख़त्म होता जाता है, राइट। और 48 में जो मैं हज़रत इमाम आका सुल्तान ने फरमाया कि બધા पैगंबरोना वक़्तમાં फरमान થતા હતા। तो आदम पैगंबर भी आ गए। तो चलो हम मौला मुर्तज़ाली के कलाम की बात करते हैं, 1400-1500 साल हुए, लेकिन आदम पैगंबर से બધા पैगंबरोना वक़्तમાં फरमान થતા હતા, તેની પણ માયના કાઢવામાં આવતી હતી, તમે પણ તેમ જ કરો। तो ये फरमान मौला के फरमान से है, बराबर। એકઠા મળીને અમારા ફરમાન વાંચો,
એક જણ પૂછે કે આ ફરમાનની શું માયના છે, બીજો કહે કે એની આ મકસદ છે. એ રીતે એકઠા મળીને અમારા ફરમાન વાંચો અને એનો માયનો મુશાહિદો કરો. જ્ઞાન की कड़ी कितनी ब्यूटी, ज्ञान विमरस ने જોઈ લો. વિમરસ यानी मायना मुशाहिदा करना. તો ઇલમ જ્ઞાનનો માયનો મુશાહિદો કરતી વખતે હાજર ઇમામની શનાખત દેખાડવામાં આવે છે. तो फिर सैयद इंद्र इमाम दिन बोलते हैं कि ज्ञान विमरस ने જોઈ લો, मायना मुशाहिदा करके अपने इमाम को पहचान लो तो प्राचत सर्वे जाए, ये सब गुनाह दुनिया की मोहब्बत वो सब दिल से निकल जाएगी. तो माशाल्लाह कितने ब्यूटीफुल अल्फाज है, राइट. तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि हमको ईमान आ जाना चाहिए कि सारी चीज़ें हैं हमारे मज़हब में, राइट. तो एक चीज़ बताता हूँ. दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ, स्टार्टिंग में अगर पहली मुलाकात होती है कि इल्म की अहमियत कितनी है, राइट. तो देखो मौला ने फरमाया ना कि जे ज्ञान है, नॉलेज, वो कोई 15, 20, 25 साल के कॉलेज यूनिवर्सिटी से ख़त्म नहीं हो जाता है, राइट. मौला ने पढ़ा पूरी ज़िंदगी रहता है. और इल्म क्या है कि खुदा का जो क्रिएशन है उसको अच्छी तरह समझने के लिए, राइट. तो सबसे बड़ा क्या है कि रूहનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. हमारा रूह है खुदा का नूर है, तो वो हमारे दिल में ही है खुदा का नूर, उसको समझने के लिए इल्म है, राइट. तो हम कायनात पे गौर व फिक्र करेंगे ना खुदा की, तो उसमें क्या दिखाई देगा कि एनिमल्स है, तो एनिमल्स में जो बब्बर शेर है वो उसका बादशाह है, राइट. फ्लावर्स में गुलाब है तो वो राजा है, मेवे में आम है उसका राजा है, पंछियों में बाज है. तो मज़हब के अंदर क्या है, मज़हब पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं है. ये जो बहस होती है ना, जो अबुल मिसर साहब के वाइज के अंदर बहुत ब्यूटीफुल बात है. बोले कई लोग आ जाते हैं कि ये कहाँ पे वे कहाँ पे है. अरे थोड़े पढ़ो, थोड़ा इल्म, बाद में कुछ डिस्कस करो. तो आपको मैं निकाल के नहीं बताऊंगा कि ये बुक में ये बुक में ये बुक में है, राइट. थोड़ा बेसिक नॉलेज तो हमको होना चाहिए, राइट. तो मज़हब ये जो कई बार वाद विवाद और बहस होती है ना, तो उसका रीज़न क्या है कि हम ये समझते हैं कि मज़हब पर्टिकुलर कोई एक चीज़ है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. मज़हब में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं. जैसे एनिमल्स कितने सारे हैं, पंछी कितने सारे हैं, फ्लावर्स कितने हैं, मेवे कितने हैं, राइट. तो ફરમાન છે દેખે મૌલાને ફરમાય કે હાલના જમાનામાં તમને જૂના જ્ઞાનો અને જુદે જુદે ઠેકાણે કરેલા અમારા ફરમાનોનો લાભ મળે છે. આવો લાભ અગાઉના વખતમાં માણસોને નહીં મળતો હતો, તેથી તેઓ દિનથી બેખબર રહી શેતાની કામ કરતા હતા. અને આ દિનની અંદર યાને હમારે ઇસ્માઇલી દિન કે અંદર शरीयत तरीक़त ने हकीकत ने तेओ समझी सक्या नहीं. तो हमारे मज़हब के अंदर ही है शरीयत तरीक़त हकीकत, तो पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं है. आगे अलीशाह माँ बाप ने फरमाया कि शरीयत तरीक़त हकीकत मारिफत और पांचवा खुदा. तो मज़हब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट. जैसे कि हम जमा खाने जाते हैं तो पहले हम वॉलंटियर को देखते, सिक्योरिटी वाला हमारी गाड़ी पार्क कराते, राइट, खिदमत करते, राइट. बाद में हम शू स्टैंड हम नांदी लेके जाते हैं तो बच्चे हमारे हाथ में नांदी ले लेते हैं, बराबर, मेहमानी उसको. बाद में हम शूज़ निकालते हैं, शू स्टैंड में लोग हेल्प करते हैं. बाद में चेंज लेते हैं तो रेज़ा पे लोग बैठे हुए हेल्प करते हैं. दुआ कर रहे थे मुखी साहब कामड़ा साहब वो है तो दुआ है, गिरिया जारी है. बैठते हैं तो गिनान पढ़ा जाता है, फरमान पढ़ा जाता है, दुआ पढ़ाई जाती है, राइट. तस्बिया होती है, मुखी साहब दुआएं देते हैं, नांदी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें, राइट. सुबह बैतुल खाल की बंदगी होती है, इल्म ज्ञान है, राइट. तो काफ़ी सारी चीज़ें. तो कहीं ना कहीं हम ये समझ लेते हैं कि बस यहीं तक ही मज़हब है, तो वहाँ बाद में बहस शुरू हो जाती है. हम हमारी अक्ल खुली रखें ना तो पता चलता है कि भाई मैंने जो सोचा है समझा है वो वहाँ पूरा नहीं हो गया है. ज़रा सामने वालों को भी सुनूं, राइट. कबूल करना ना करना वो डिफरेंट बात है, पहले सुन तो लो आराम से, बराबर, इत्मीनान से, सब्र से, तो पता चलता है. क्योंकि मौला है ना वो रूप लेता है. कलाम में मौला ने फरमाया जिस पर कर्म करे वो आप, तो वो कर्म करता है, उसको आप ही आप बुझावे. कर्म भी वो करता है, बुझाता भी वही है. कैसे? इलम ओलमा कामिल मुर्शिद बनकर आप सुझावे. भेजता नहीं है, वो खुद बनता है. ये कलाम में बोला है बनकर, वो इलम बन के आता है, वो आलिम प्लोर है एक से ज़्यादा, राइट. तो ओलमा कामिल जो सब चीज़ में होवे कामिल, और मुर्शिद तो करीम हाज़िर इमाम सही खुदा आलमीन खुद, वो खुद बनकर आता है. कैसे भी आता है. गिनान में मूसा पैगंबर को दिल हुआ कि मैं मौला की मेहमानी करूँ, तो बहुत दुआ करी कि मौला मैं तेरे लिए खाना पकाऊंगा, तू मेरे लिए खाने आना. तो खुदा ने फरमाया कि मैं आऊँगा, श्योर आऊँगा, तू पका के रख. रोज़ दुआ मांगते थे, खाना पकाए रोज़ मांगते थे. तो एक बार क्या हुआ कि घर के अंदर बैठे थे, पूरा गिनान है, तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया. तो लाली, ऐसा वर्ड है लाली, यानी
उनकी मेड थी जो गुलामड़ी, तो बोले देख कौन है, तो बोले फ़कीर है। तो बोले क्या सवाल है, क्या चाहता है, तो बोलता है कि भूखा वो खाना चाहिए। तो मूसा पैगंबर ने बोला कि वो कोने में पड़ा है ना वासी खाना 2-3 दिन पहले का, वो ज़रा उसको दे दे। तो दे दिया, फ़कीर चला गया। ये इबादत में बैठे हैं कि खुदा मैंने तेरे लिए खाना तैयार रखा है, तो तू आ खा। तो खुदा ने फरमाया मैं आया था तेरे दरवाजे पे, तूने मुझे पहचाना नहीं, और मुझे वासी खाना दिया वो भी तूने नहीं दिया, वो गुलाम के हाथ भिजवाया। राइट। तो हर इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है। राइट। मौलाना रूमी को अपने उस्ताद सम तबरेज में वो रोशनी दिखाई दी। राइट। तो પાક આંખોથી જોશો તો દરેકમાં ખુદાવંદ તાલાનું નૂર જોશો. ફરમાન છોડીને બદનજરથી જોશો તો દિલની આંખો આસ્તે આસ્તે આંધળી થઈ જશે, દિલમાં અંધારું થશે અને નૂરને કદાપી नहीं जो શકો. राइट. तो मौला इस तरह कर्म करता है. हम कहते हैं ना कि खुदा जिन्हें चाहे છે તેને પોતાના नूर वड़े हिदायत, खुदा जिसे चाहता है उसे अपने नूर से नवाजता है. बराबर. तो इल्म की अहमियत की बात कर रहे थे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया जानवर, पंछियों का, मेवे का. राइट. तो मजहब के अंदर मौला ने क्या फरमाया, मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर है आला, कि इल्म से तो रब पहचाना जिन्हें अपना दिल उजाला, और हुनर कमाई फना होवे पहचान खुदा की रहवे बाकी. ये सुनो, सिर्फ सुन के बैठे नहीं रहना, इल्म समझो, और जो समझा ना उसको याद करो इस तरह के दिल में बस गया. जो तुम दिल वसे रब का ने, ये सुनो समझो याद ज राखो फरमाया कौसर साकी, जो बातूनी रूहानी इल्म का पिलाने वाला है मौला मुर्तज़ाली. सही खुदा नाली बोला कि मैं फरमा रहा हूँ, नूर इलाही अव्वल था सो आखिर जग में पाया जहूर, इसी दिन के ताबे होवे उसमें रोशन होवे रब का नूर. ख़त्म किया इस कलाम को सब जाहिर के सुनाया, सो पढ़ो सीखो सुनो और सुनाओ यूँ मौला ने हुक्म फरमाया. तो ये कई लोग बोलते हैं ना कि आप इल्म करते हो, कोई अमल तो नहीं करते. इल्म पढ़ना अमल नहीं है, इल्म बोलना अमल नहीं है, इल्म पे सोचना अमल नहीं है. बराबर. ये सारा अमल ही है. राइट. और ये इतना बढ़िया अमल है कि और कोई चीज़ आती नहीं. जिना दिल में दुआ ज्ञान है ते सारो है, शैतान तेनाथी दूर भागे છે. ये हमारे मजहब की खूबी है. कई फरमान है कि शैतान तमारा पूठे लागेलो है, 24 કલાક તમે शैतान थी परहेजगारी करो, शैतान थी डरता रहो. तो यहाँ ये फरमान मुबारक में ये फरमाया कि आप शैतान से भागो, लेकिन एक फरमान ये है कि जिसके दिल में दुआ गिनान है वो अच्छा है, शैतान उससे दूर भागता है. तो हम कुछ ऐसा करें कि हम कहाँ तक भागते हैं, वही भाग जाए. पुराने ज़माने में मुखड़ा देखा तो मन हरक गया, फिर संवत्सर कंती सुनाया, मेरे साहेब अब तेरी मोहब्बत लागी. आपके चेहरे पे खुशी आई. पहले ज़माने में गांव में क्या करते थे कि जंगल के करीब गांव होते थे ना, तो रात को सोने के टाइम पे आग लगाते थे घर के आजू बाजू, तो कोई जंगली जानवर आग की रोशनी से अंदर नहीं आता था, वो चला जाता था. राइट. तो ये मौला की मोहब्बत की रोशनी अंदर है तो हमारा क्या बिगाड़ेगा शैतान. राइट. हमको कोई डर नहीं. राइट. तो ये मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर आला. मौला ने फरमाया इल्म वगर कोई पण काम थई शकशे नहीं. इल्म वडे पहाड़ जेवी मुश्किल बाबत आसान करी देवा छे. कोई पहाड़ हो माउंटेन, तो 2 जन खड़े हुए तो पूछे कि इसको हिलाओ, तो दूसरा क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा कि इम्पॉसिबल बोलेगा. रे ऐसा नहीं बोलेगा कि मुश्किल है, ऐसा नहीं बोलेगा. इम्पॉसिबल के पॉसिबल ही नहीं है कि छोड़ दे ख्याल. तो मौला ने फरमाया ऐसी मुश्किल भी होगी ना तो इल्म के जरिए वो आसान हो जाएगी. बराबर. तो देखो मोहब्बत वही मुलाकात है. मुलाकात क्या है, दीदार क्या है, जब हमारे दिल में मोहब्बत होती है ना सच्ची, जब हमारा दिल पाक और साफ़ होता है तो मोहब्बत में एक स्टेज होता है, तो वहाँ एहसास होता है मुलाकात का. तो मौला ने फरमाया कि मोहब्बत ए ज मुलाकात से. तो आमालनी बचवनी है रूहनी मुलाकात. बराबर. तो आमाल पाक हो गए तो रूह की मुलाकात होगी. यहाँ बात हुई. राइट. अभी रूह की मुलाकात के लिए हम आमाल पे आए. अभी आमाल कैसे पाक करें, तो मौला ने फरमाया कि आमाल पाक रखने के लिए हमेशा यादगिरी रखनी ज़रूरी है. यानी खुदा की यादगिरी, हमेशा खुदा ख्याल में रहो. खुदा ख्याल घड़ी एक पण नहीं विसारता. तो रूह की मुलाकात से हम आमाल पे आया, आमाल की पाकीज़गी पे, हमेशा यादगिरी पे ये आए. राइट. लेकिन मौला ने फरमाया कि ये यादगिरी रखने का काम बहुत मुश्किल है. तो अभी क्या करोगे, तो मौला ने फरमाया इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किल बाबत आसान हो जाती है. बराबर. आप मजहब की कोई भी प्रैक्टिस करो, इल्म में जितना ध्यान लगेगा उतना किधर भी नहीं लगेगा. तो इल्म भी एक प्रैक्टिस है. एक करीम आज़म का फरमान कि हमारी मजहब की प्रैक्टिस में क्या है, मौला में तस्बीह है, बैतुल ख्याल की बंदी है और गिनान कसीदा है, यानी कि इल्म है.
और फरमान तो मौला फरमा ही रहे हैं, तो ये भी मजहब की प्रैक्टिस है, तो इससे दिल साफ होता है। पीर सदरुद्दीन साहब ने उनका हमारी पुरानी दुआ था ना, उसमें गिनान की कड़ी आती थी पीर सदरुद्दीन साहब ने, तो बहुत प्रैक्टिस की बंदी इबादत की, ध्यान नहीं लगता था, तो उन्होंने गिनान की अंदर एक कड़ी लिखी, तो फरमाते हैं पीर सदरुद्दीन साहब के कुंभे बांधू जड़ रहे हैं। पहले ज़माने में कुंभ थे, वो मिट्टी के कुंभ आते थे, बराबर, काफ़ी गैलन पानी रहता था, आपने गांव में देखा होगा। तो समूह लग्न में हमारे इस्माइली अपने हमारे गुजरात में घड़ी रखते थे, तो कुंभ कहते थे उसको। तो कुंभे बांधू जड़ रहे, जैसे आप आके घर पे आया, हम पानी मांगते हैं तो ग्लास में देंगे, लोटे में देंगे, बॉटल में देंगे, उसको बांधना पड़ता है, राइट, पानी को। तो कुंभे बांधू जड़ रहे, जड़ यानी पानी, उसको बांधने के लिए कुंभ चाहिए। तेम गिनाने बांधू मन रहे, ये मन जो भटकता है ना, उसको बांधने का इलाज ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? तमारा वास्ते इलम छे ते ज्ञान छे, हमारा फरमान एज ज्ञान छे। और फरमान तो बहुत सारे हैं, तो उसमें भी मौला ने एजुकेशन के है, हेल्थ के है, इकोनॉमिक ग्रोथ के है, इंश्योरेंस के है, लेकिन हमको हमारी रूह की फिक्र है। तो मौला ने फरमाया कि हमारा जे फरमान थाय जेमा तमारो जीवनो छुटको थाय ते पढ़ो, आपके रूह को कैसे नजात मिले वो इलम पढ़ो। तो ये इलम वो है। हाँ, तो हाँ, हम बात करेंगे। तो 313 फरमान मुबारक, रूहानी रोशनी, रूहानी राज, 33.5 कलाम और 8 रूहानी फरमान मुबारक है, राइट। तो ये हम रूहानी समझन के फरमान बोलते हैं, राइट। तो इलम की अहमियत है, राइट, कि इलम से पहाड़ जैसी मुश्किल बात आसान हो जाती है। और मर्तबा इल्म कह रहा सब हुनर पर आला, इल्म के बगैर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। दूसरे भी हम कलाम सुनते हैं कि फरमान पढ़े दिल रोशन होवे, मोमन दिल बहुत होवे सुख। बहुत फरमान पढ़े तो लालच घटे, कि लालच दिल को बड़ा है दुख। फरमान पढ़ो जो पढ़ना जानो, नहीं तो सुनो रब का कलाम, और सुनना भी न पाओ किसी से तो हरदम लियो खुदाए रसूल का नाम। कलाम खुदा का है दिल की दारू, कलाम पढ़ने से दिल सही होवे चंगा, चंगा यानी तंदुरुस्त होता है। दिल रोशन होवे नूर नूरानी, जो पहले गुनाह स्याही से रंगा। भाई, मौला कितने मोहब्बत से अपने हमारे कंधों पे हाथ रख के बोलता है कि भाई, सब दर्द की दारू लिखी, पर दिल के दर्द की दारू है ये। कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रब का ने। तो मौला ने फरमाया कि इश्क हकीकी ढूंढो। तो इश्क है ना, वो छुपा के रखी हुई है, तब हमने को ढूंढने को बोला ना। आका अली शाह महाबाद में फरमाया कि पानी खुदावन ने सबके लिए पैदा किया है, राइट। तो पानी क्या है, मिसाल क्या है कि पानी दीजिए ज्ञान। इल्म की मिसाल के लिए पानी अल्फाज यूज़ किया है इल्म के अंदर, राइट। लेकिन जो मोहब्बत है ना, तो पीर पंजाते जवाब मर्दी में हज़रत इमाम आका मुस्तन सिरबिल्ला मौला फरमाते हैं कि मेरा जो इश्क है ना, वो तो मैं मेरे खास बंदों को ही दूंगा, सबको नहीं मिलेगा। तो जैसे हम आपा को बोले कि भाई बिरयानी कहाँ पे है, तो किचन में जाएगा, राइट। कोई गराज में के स्टडी रूम में के ऊपर के कोई रूम में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है कि वो किचन के आइटम है, राइट, खाने के आइटम है। तो ये ढूंढने की बात क्या है, इश्क चाहिए हमारे दिल में, तो कलाम खुदा का याद करो। तो हम लोग 313 फरमान मुबारक में हज़रत इमाम आका सुल्तान साहब के फरमान इजी है थोड़े, वो याद कराते हैं, और 33.5 जो रूहानी कलाम है वो याद कराते हैं, और बाद में उस पर गौर व फिक्र करने के लिए बोलते हैं, मनन चिंतन करने को। तो कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, यानी उसको पढ़ो, उस पर सोचो, तो क्या होगा, जो तुम दिल वसे रब का ने। तो मौला का इश्क हमारे दिल में बस जाएगा, और दिल में इश्क बस गया तो उसको उसकी बुलंदी पे ले जाओ। जो इश्क बराबर हो तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है, एक हो गया अभी फना फिल्ला, खुदा के नूर में एक हो गए, राइट। तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ कि हम जो कर रहे हैं बराबर करें। इल्म 40 हमारे इल्म हमारे मज़हब में है, और इल्म की क्या अहमियत है, तो ये चीज़ें मैंने बताई, राइट। अभी बोलो, आपको कुछ पूछ रहे थे, તમે આરામથી બેસો, પલાટી વાળી દો, क्या टेबल जो है तुम्हारा? नहीं नहीं हाँ, आप ईमान बात करते हो तो ईमान और जीव क्या है? जीव, ईमान और जीव क्या है? क्या फर्क है, क्या है? ईमान और जीव में, एक दोनों को भी बताओ और हाँ उसका- हाँ, बराबर। तो आप ईमान की क्या मतलब, क्या डेफिनेशन है आपके पास ईमान की? आप क्या समझते हो ईमान को? आराम से, हम आपस में भाई बहन आराम से डिस्कस करो। ईमान एक चिराग की तरह जल रहा है अपने सीने में, हाँ हाँ, वो है। बराबर, और जैसे जैसे सत्संग होता है, नाज़िमाम की सोबत होती है, तो Right. वो रोशन या चिराग, लाइट
बढ़ जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका शऊर आ जाता है, उसकी अवेयरनेस आ जाती है, और फिर वो आपके साथ साथ रहता है, वो ऐसा पार्टनर बन जाता है। ऐसा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बराबर है, बहुत अच्छे प्यारे अल्फाज हैं। एक नूरानी जोत है जो हमारे दिल में जल रही है, राइट। और जीव ऐसा है जैसा जैसा कोई येलो लैंप होता है, कोई रेड लैंप होता है, अलग अलग जीव होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटेंसीज होती है। क्या बोले? कॉम्पिटेंसी मतलब टेंडेंसी, जैसे मौला अली का एक जीव है, हाँ हाँ। फॉर्म है ना मौला अली का भी, फॉर्मलेस तो नहीं है ना, खाली अल्लाह फॉर्मलेस है, हम्म। मौला अली फॉर्मलेस नहीं है, तो वो उनका एक फॉर्म है। जैसे आपने बोला कि ये फॉर्म में पानी है, ग्लास में पानी है, इसी तरह से मौला अली भी एक दरिया है, समंदर है, हाँ उसके अंदर नूर है, और आप उन सब उस नूर के छोटे छोटे दरिया हैं। तो जीव क्या है? जीव क्या बताओ कि जीव वो शेप है, वो उसकी टेंडेंसी है, उसके बारे में कुछ। तो देखो, पहले हम ईमान की बात करते हैं, राइट। तो ईमान क्या है? फेथ है, राइट, विश्वास है, गुजराती में कहे, राइट। तो क्या चीज़ पे विश्वास है, किस पे विश्वास है, उसको ईमान बोलते हैं, राइट। तो देखो, इतनी सारी जमात है, तो आप यहाँ पे आए तो कुछ ईमान है, कोई विश्वास है, राइट। कोई ऐसा फोर्स है जो आपको यहाँ पे लाया, राइट, तो वो ईमान है, राइट। तो जब मौला ईमान की बात करते हैं ना, तो करीम आज़मी ने क्या फरमाया कि आपके बच्चे आपको पूछेंगे कि इमाम कौन है और ईमान क्या है, और इमाम को क्यों मानना चाहिए, बराबर है। तो देखो, मैं मेरी खुद की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बचपन से, मुझे याद नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि करीम हाज़री इमाम ही सही खुदा बिन आलमीन है, मुझे ऐसा सिखाया गया, मुझे याद नहीं है। मेरे नाइट स्कूल के टीचरों ने बोला, या मेरे बड़े भाइयों ने या दोस्त कोई बिरादरों ने बोला कि करीम हाज़री में खुदा है, वो थी, खुद ब खुद थी। मतलब गुजराती माँ में कहे कि गढ़ थूती माँ, बच्चा जन्मता है ना, तो उसकी फूफी होती है ना, वो पहला कुछ डालती है, लिक्विड डालती है मुंह में, तो के मतलब कि लेके आए थे वो ईमान, बराबर। वो ईमान था ही अंदर कि करीम हाज़री इमाम ही सही खुदा बिन आलमीन है। भले ये जन्म में कोई ऐसा अनुभव नहीं किया, कि कोई ऐसा इल्म भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो था ऑलरेडी, ओके, ये था, ओके। कैसे था? तो अगले जन्म है, राइट। अभी कई बार हम उसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन करेंगे, और सारी इल्म मिजालिस के वाइद के अंदर है। तो मैं कोई हम सब एक ही मौला के मुरीद हैं, तो मैं को ऐसा नहीं बोलता कि इंडिया से, पाकिस्तान से, लेकिन कल्चर का उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान वाले हैं ना, वो लग 84 के फेरे में नहीं मानते। आप ध्यान से सुना मेरी बात। आप पाकिस्तान के सारे मिशनरी ले लोगे, शायद ही कोई इसने बताया हो कि हमारे मस्जिद में लग 84 का फेरा है, वो लोग ना बोलते हैं। लेकिन मैं फरमान से एक ही अल्फाज, एक ही जुमले के अंदर हज़रत इमाम आका सुल्तान से फरमाया, कलाम बिन पार्ट 1 में, कि लग 84 ना फेरा फरी इंसान थया, यानी लग 84 का फेरा है, वो फिर के आए और इंसान बने। ते वक्त में नहीं चेत्या, गधेड़ा कुतरा ज रही गया, यानी इंसान तो बने लग 84 का फेरा खा के, लेकिन जिसम ही इंसान का है, लेकिन आपके काम हैवान के हैं। तो गधेड़ा कुतरा ज रही गया, मरी ने पाछा हैवान थया, तो लग 84 का फेरा है, राइट। मर के वापस हैवान बने, उसमें क्या फ़ायदा, क्या लाभ, मौला ने फरमाया। फिर सदर माँ बाप ने फरमाया। कई लोग ऐसी दलील करते हैं कि हम तो, हमारे माँ बाप हिंदू थे ना, तो उनको समझाने के लिए पीर सदरुद्दीन ने और पीरों ने ऐसे गिनान बोले थे। नहीं, हम अब मुझे कुछ समझाना है, आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, आपका कल्चर, तो आपको समझाने के लिए मैं क्या झूठ बोलूँगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो पीर सदरुद्दीन साहब ने अपना अनुभव बोला कि लग 84 ना बंद छोड़ाव्या અને मौला अली हमने મળ્યા, मौला अली हमारा आंगड़े पधार्या। हम घटपाट का गिनान है ना, तो वो तो बोले मेरा लग 84 का बंधन था और मौला ने तोड़ा। तो यहाँ कोई किसी को समझाने की या कोई हिंदू है उसको समझाने के लिए नहीं बोली, खुद का अनुभव बोला कि है ये चीज़। तो ये चीज़ मैंने क्यों बोली कि मेरे अगले जन्म का था, पूर्व पुण्य विना क्या थी पामिए साचो ते सतपंसार। तो पूर्व पुण्य भी है, पूर्व पुण्य का एक मायना ये होती है कि अगले जन्म, और आज ये सेकंड से हमने इस्माइली मजहब में जन्म लिया, उसके आगे का जितना भी 40-50 साल हो गए, वो जितना भी हमने कर्म किया अच्छा, वो पुण्य है, राइट। तो उसकी बदौलत है, उसका अवेज हमको मिलता है, उसका बदला मौला हमको बख्शिश देता है, बराबर। तो एक तो है कि हम लेके ही आते हैं। जो गिनान में प्रहलाद है, 5 साल का था,
तो श्री हरि करता था। अभी हम हमारे अतराफ में देखेंगे कि पैर कब्र में पैर लटके तो भी खुदा का नाम याद नहीं आता है, तो वो तो 5 साल में करता था, राइट। तो ये साबित होता है, राइट, क्या कर्म है, राइट। तो मुझे नहीं याद होता, मुझे किसी ने सिखाया। अगर हमको कोई सिखाने में आता है, एक चीज़ है कि हम करीम माजरे में सही खुदाविन आलमी ने हम नहीं मानते, हम ईमान की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे हमने अभी फरमान में पढ़ा कि हमारा दादा हजरत मौला मुर्तज़ाली ने मोहम्मद नुशैरी अल्लाह कहते थे, राइट। तो कोई कहेगा तो मौला ने तो यहाँ ऐसा फरमाया कि नुशैरी कहता था, लेकिन मौला ने लास्ट में क्या फरमाया, क्या साचो मोमन से, उसको सच्चा मोमन कहा। क्यों? उसके ईमान की बदौलत। फरमान की स्टार्ट हुआ कि ईमान अनमोल चीज़ है और आका को प्यारी है। बाद में मौला ने एग्जाम्पल दिया नुशैरी का ईमान का, राइट। तो पहला ईमान है कि अली वही अल्लाह है, हमारे गिनान में है। हमको पीर सदीन साहब ने बोधे पीर सदीन साहब ने फरमाया कि आल अली इस्लाम शाह राजा, कि मेरे ज़माने में जो इमाम है उनका नाम है श्री इस्लाम शाह, ईरान में मौला रहते थे। तो वो किसकी आल से? आल अली के आल से, इस्लाम शाह राजा, अल्लाह यही इमाम। तो यहाँ तो पीर सदरदी ने कमाल कर दिया। हम तो अली को अल्लाह बोलते हैं, बराबर है, लेकिन बोले अल्लाह है वही इमाम है, अल्लाह खुद इमाम बन के आया है। भगत कारण हरि आव्या अने धर्यो मानखा वेश, जिसम लिया हमारा जैसा, कि हम उसको आसानी से पहचान सके, बराबर है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है ईमान की? जब अली अल्लाह की बात होती है ना, तो आप लोग बोलते हैं कि आप करीम हाजिर इमाम को खुदा कहते हैं। तो हाँ, हम करीम हाजिर इमाम को खुदा कहते हैं, लेकिन करीम हाजिर इमाम के रूह को कहते हैं, जिसम मुबारक को नहीं कहते हैं। तो हम हज़रत इमाम आका सुल्तान साहब भी खुदावंद आलमीन कहते थे। आज भी जितने भी प्रेसिडेंट लीडर है ना, मेरे डैडी प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, 2 बार मौला के हुजूर में पेरिस जाके, मौला के बंगलों के अंदर भी प्रिंसेस जोहरा प्रिंस रहीम ने मुंह में डाल के चॉकलेट खिलाई। तो मैंने डैडी को पूछा कि आप मौला के हुजूर में होते हो तो आपको कुछ पूछना होता है, तो आप कैसे बिहेव करते हो? तो पहले तो हम समझो कि मौला है ना, मौला जहाँ बैठे खड़े, हम उनके मौला के पीछे ऐसा खड़े रहते हैं, राइट, कुछ नहीं बोलते हम। तो मौला देखते हैं तो यस, बाद में मौला पूछे कि यस, तो कि खुदाविन, ऐसा करते हैं। पहले हम पहला लफ्ज़ हम बोलते हैं खुदाविन, यस, मौला बोलते हैं यस, बाद में हम अर्ज करते हैं, राइट। तो हम हज़रत इमाम आका सुल्तान साहब भी खुदाविन बोलते थे। तो हम रूह को बोलते थे, और हर इमाम मौला मुर्तज़ाली है। जो खुदा है ना, खुदा खुद नूर है, वो इमाम के अंदर रोशन है, जलवागर है। हम वो रूह को, इमाम के रूह को खुदा बोलते हैं, राइट। अगर हम जिस्म को बोलते हो तो हम आसमान पे जहाँ हज़रत इमाम आका सुल्तान जिस्म मुबारक को मौला आराम फरमा रहे, वहाँ जाके रोते होते, राइट, सर पटकते होते। क्यों नहीं पटकते हम? क्योंकि हमारा इमाम तो रोशन है। हमारे मजहब में रोने का है ही नहीं। जो दिन इमाम जोमा सिफारता है वही दिन दूसरा इमाम तख्त पर विराजमान होता है। हमारे मजहब में खुशहाली है, राइट। तो हम रूह को, नूर को खुदा कहते हैं, बराबर। तो ये ईमान क्या है कि अली अल्लाह वो ईमान है, राइट। एक ईमान आ गया। पहला ईमान क्या है कि हमारा माँ बाप कहते हैं, उन्होंने इल्म पढ़ा है, नाइट स्कूल के टीचर उन्होंने इल्म पढ़ा है। एक तो इल्म पढ़ के कि हमको हमारे पीरों ने इस्माइली बनाया, राइट, और ये हमारे इमाम है, ये हमारा मजहब का इल्म कहता है। ये खुदा खुद इमाम बन के हमारे सामने हाजिर है, वो रूह, वो नूर, हम उसको, ये ईमान है, राइट। लेकिन ये पढ़ने से आया, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन इल्म के बोल वो नूर है ना, फरमान नूर है, उसको आप ध्यान से सुनते हो, पढ़ते हो, तो एक अजीब सी एक मोहब्बत हो जाती है। अभी हमने अमल नहीं किया, लेकिन पीरों ने बोला कि ए जी गिनान बोलो नित नूरे भर्या, हमेशा बोलो नित, यानी क्यों? एवो तमारे हेड़े हरख न माए, तो आपके दिल में खुशी भर आएगी, क्योंकि वो नूर से भरे हुए हैं, बराबर। तो ये पढ़ के सुन के हम ईमान लाए। दूसरा क्या है कि एक्सपीरियंस होता है, और जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसको कोई जुठला नहीं सकता। अभी समझो कि आप मुझे पूछोगे करीम भाई आग क्या है? आग, फायर। तो मैं बोलूँगा आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो बोला कोई गर्म चीज़ है, तो आपके दिमाग में आएगा गर्म चीज़। तो आपने क्या क्या गर्म चीज़ें देखी है कि भाई शावर लिया तो गर्म पानी, या अगरबत्ती, या मोमबत्ती, या माइक्रोवेव, ये सब चीज़ का, सूरज की गर्मी, इसका जिक्र करोगे, राइट। तो मैं बोलूँगा नहीं, आप जो बोले वो गर्मी है, लेकिन अग्नि, फायर है, तो वो तो बहुत गर्म चीज़ है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ चलने लगी कि मैंने जितनी भी गर्मी महसूस की है ना, तो ये भी कोई गर्मी की बात हो रही है, लेकिन ये कोई बहुत आला चीज़ है, कोई बहुत गर्मी वाली चीज़ है, राइट। ये आपने नहीं देखा है, आपने महसूस नहीं किया है, लेकिन सुनने वाले पे आपको ये इल्म पीरों का है, इमाम का है, और ये कोई सुना रहा है मुझे, और मुझ पे, मैं इस्माइली हूँ, मैं उस पर ईमान लाता हूँ, राइट। तो पहला ईमान
कान से सुनने का होता है, ओके। लेकिन वहाँ छुटकारा नहीं होता है। मौला ने फरमाया कि जीभ ईमान छू दोजक पाई, जब तक जबान पे ईमान है ना तब तक दोजक है। दिल ईमान छू छोटे, वो ईमान जब दिल में रोशन हो जाता है ना तब नजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। अभी ये आग के बारे में हमने सुन लिया, राइट। अभी ये समझो कि एक किताब के अंदर आग का जिक्र है, राइट। हम इसको छुएंगे, ऐसा सीने से लगाएंगे तो आग महसूस नहीं होगी, राइट। क्योंकि इसमें जो कहा गया है उसके मुताबिक करोगे कि आग वहाँ जलती है, आप जाओ पहले देखोगे तो वो इल्मुल यकीन है। करीब जाओगे ना, जितने करीब जाते हो कि उसी गर्मी का एहसास होगा, राइट। तो ये ऐनुल यकीन, ऐन यानी देखना, और इल्म पे ईमान लाना, सुना उसको देखा और महसूस किया, वो हक्कुल यकीन है। महसूस किया, गर्मी महसूस होती है और हाथ डाल दिया अंदर और चमड़ी जल गई, वो एक्सट्रीम अनुभव बोलते हैं उसको। वो कभी नहीं भूल पाओगे लाइफ में, जो मौला बोलते हैं, जो रोशनी छुएगी ना इस तरह, वो कभी भी नहीं भूल पाओगे। और हक्कुल यकीन, लेकिन ये इल्मुल यकीन, इल्म पे यकीन, ऐनुल यकीन, आंखों से देखना, हक्कुल यकीन, ये तीनों चीज़ों के पीछे यकीन शब्द जुड़ा हुआ है। यकीन यानी ईमान, आप जो ईमान की बात कर रहे हो। लेकिन अभी ईमान का वजूद है, वो वजूद भी ख़त्म हो जाता है। वो आग के अंदर आप कूद पड़े और आपकी खुद ही ख़त्म हो गई, वो आग के अंदर एक हो गए तो बस रोशनी बाकी रह गई કે જુઓ પતંગિયું છે તે બત્તીની રોશની જોઈ ઈશ તથા મોહબ્બત સાથે પોતાની જાન બાળી નાખે છે. તેઓને એટલો ઈશને એટલી મોહબ્બત છે કે કંઈક પતંગિયા જીવ આપી દે છે. તમે પણ ખુદાવંદ તાલા પ્રત્યે એવો ઈશ રાખો, તમે એવા આશક થાઓ. तो ये आशिकी है. तो ये ईमान है. तो पहला ईमान ये है कि करीम हाजरी माम ही खुदा है, उसका रूह है वही खुदा है. ये ईमान है. अभी ये इल्म से आया और बाद में हम अनुभव करते हैं, राइट. और अनुभव जो होता है ना, देखो पीर सदरजी साहब के 2 गिनान हम लेते हैं. कितने बड़े पीर है, पीर समद साहिब. तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं पहुँचा तैसे मैं कहिया. जैसे मैं वहाँ पहुँचा ना तभी मैंने वो आपको बात कह के सुनाई. कहते हैं कि वण पहुँचे एतबार ना आया, कि जब तक नहीं पहुँचा ना तब तक एतबार ईमान नहीं आया था. लेकिन मेहनत तो करते थे ना मज़हब के अंदर. एक गिनान में बोलते हैं कि गिनान ध्यान में है सर्वे सुध पाई. सारी समझ है ना इल्म के अंदर ध्यान लगेगा तो सारी समझ मिलेगी. और हमको बोला कि खोज के मिलना, आप भी खोजो इल्म के अंदर. तो अभी बोला कि जब तक पहुँचा नहीं था तब तक ईमान नहीं आया था, राइट. अभी वही पीर समझ ने क्या बोला जब ईमान रोशन हो गया तो बोले पाड़ी पाड़ी पटोले भात के तो फाटे पण फीटे नहीं वो जी. तो हमारे सिद्धपुर के आगे पाटन एक सिटी है, तो वहाँ के पटोले एक साड़ी की पैटर्न होती है. तो उस पर इतनी डिज़ाइन इतनी ज़बरदस्त मारते हैं कलर से. तो ये 900 साल पहले का पुराना गिनान है. तो ऐसा कहा जाता है कि साड़ी फट जाएगी लेकिन उसका जो कलर है ना वो नहीं जाएगा. तो पीर समझ माँ बाप ने उसका एग्जाम्पल दिया कि पाड़ी पाड़ी पटोले भात के जो पटोले जो साड़ी होती है ना उस पर जो भात लगाई ना डिज़ाइन, इस तरह मैंने मेरी मौला की मोहब्बत मेरे दिल में कायम कर दी है. अभी वो नहीं टूटेगी चाहे कुछ भी हो जाए. पाड़ी पाड़ी पटोले भात हते तो फाटे, कपड़ा फट जाएगा लेकिन भात नहीं जाएगी पण फीटे नहीं. वाली वाली हिरल यानी गांठ, कि ऐसी गांठ मारी है मौला की मोहब्बत, रस्सी टूट जाएगी लेकिन ये गांठ नहीं टूटेगी. तो ये क्या हुआ, ये ईमान रोशन हो गया, राइट. तो पहले तो इल्म सुनना पड़ता है, उसके मुताबिक अमल करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इल्म पे गौर फिक्र करना पड़ता है. और आहिस्ता आहिस्ता उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है ना, तो बाद में जब दिल पाक और साफ़ होता है, हमारा फरमान सांभळशो, सुन तो लिया, ते प्रमाणे अमल करशो. जो इल्म की समझ हासिल की, समझ का भी स्टेज है, समझ बढ़ती जाएगी, दिल साफ़ होता जाएगा ना. पहले ज़माने में हमारे घर कैसे बनाते थे कि ईस्ट साइड बनाते थे, सूरज उगता था ना तो वो साइड, क्योंकि लाइट वो नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो दरवाज़ा खोलते थे, खिड़कियाँ, तो सुबह सूरज की रोशनी घर में आती थी, राइट. अभी सूरज उगा है लेकिन हमने हमारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद है तो रोशनी नहीं आएगी. जितना खोलेगी उतनी आएगी. पूरा खोल दिया तो पूरी दिल रोशन हो गया मौला की मोहब्बत से. तो हमारा फरमान सांभळशो ते प्रमाणे अमल करशो. तो है ना वो शरत है, तो दिल साफ थशे અને તેમાં રોશની पैदा થશે. तो बराबर. तो नेक मिजलस में एक इल्म मिजालिस है, हर किस्म का इल्म बोला जाता है, लेकिन उसके ऊपर नेक मिजलस है. वहाँ सिर्फ रूहानी इल्म, रूह के छूटका कैसा होवे वही इल्म बोला जाता है, उसको नेक मिजलस बोलते हैं. तो मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाइन आलमीन के कलाम में है कि नेक मिजलस में नित नित जाइए, हमेशा हमेशा जाओ. क्या करो, सुनिए इल्म इरफान इलाही. इल्म यानी फरमान, रूहानी समझन के फरमान.
इलाही यानी खुदा, इरफान यानी पहचान, खुदा की पहचान का इलम सुनो। सुनिए इलम इरफान इलाही नेक मजलिस में नित नित जाता। वापस 4 बार अल्फाज यूज़ किया मौला ने कलाम में, हमेशा 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 हमेशा। नेक मजलिस में नित नित जाता, घटे अज्ञान, अज्ञानता घटती जाएगी। क्या अज्ञानता है? તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છો। અસલ મકાન क्या है? मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन खुद है। मौला मुर्तज़ा अली इल्म के समंदर है। तो मौला मुर्तज़ा अली की बड़ाई कितनी है वो ज्ञान आता जाएगा, राइट। घटे अज्ञान और दिल की शाही, दिल जो मैला हो गया है दुनिया की मोहब्बत, फिक्र, चिंता, काम, वासना, बदगोई, निंदा, बदनज़र, झूठ बोलना, हसद, ये सारी चीज़ों से जो दिल मैला हुआ है ना, वो नूर का पानी, इलम का पानी, इलम मजलिस में आओ, इलम मजालिस की रिकॉर्डिंग सुनो, फरमान पढ़ो, याद करो, वो नूर का पानी पड़ता जाएगा तो दिल साफ होता जाएगा। फिर समझ ने फरमाया कि खड़ंग उजरा सरा, खड़ंग यानी तलवार, उसको तेज रखनी पड़ती है तो धार करनी पड़ती है, राइट। खड़ंग उजला सराणे अने नीरे उजला चीर, नीर यानी पानी, कपड़े को साफ करना है तो चीर यानी कपड़ा, पानी से साफ रहते रहे। तेम गिना ने उजड़ा मारा मोमना, एम बोलिया समझ पीर कि आप कैसे उजले हो गए, तो क्या ज्ञान से हो गए, ऐसा पीर समझ आपके पीर फरमा रहे हैं, बोला है, राइट। तो नेक मजलिस में नित नित जाता, घटे अज्ञान और दिल की शाही, दिल रोशन होवे साफ आईना, उसमें दिसे हक दीदार, खुद मंजिल अपने को पावे, ये फरमाया साहिब इसरार। जो भेदों का जानने वाला, जो भेदों का जाहिर करने वाला, वो मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाइन आलमीन फरमा रहे हैं। तो ईमान, तो पहला ईमान है कि अली ही अल्लाह है, ये ईमान, और उस पर अमल करते करते वो भेद जाहिर करता है अपने, राइट। दूसरा ईमान क्या है कि जो मंशूर की बात है, मौला ने फरमाया तमे तमारू ईमान मंशूर जो राखो। तो मंशूर अनहक कहता था। तो मंशूर ने जब ये कुरान पाक की आयत पढ़ी, सूरह इखलास, हमारी दुआ सूरह फातिहा से स्टार्ट होती है तारीफ़ से खुदा की, और उसके बीच में अली अल्लाह आता है। कभी ये सोचा हमने दुआ के अंदर अली अल्लाह कहाँ पे है? हम दुआ में पढ़ते हैं कि ओ अल्लाह हमें फक्त तारी ज इबादत करिए छे ने फक्त तारी ज मदद चाहिए छे, तो खुदा से मदद। और आगे दुआ में पढ़ते हैं कि मुसीबतना समय मदद मांगो अपना धनी नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजर इमाम ने। तो करीम हाजर इमाम ही खुदा है। एक एक जगह पे प्रूफ है। करीम हाजर जमात में आते बोले माई बिलोड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों। तो खुदा का एक नाम है अल बारी, यानी एक रूहों का बाप, रूहों का पैदा करने वाला। तो करीम हाजर इमाम बोलता है हमारे बीच में आते तो मौला फरमाए माई बिलोड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों। हर जगह पे है तोबो तोबो तकसीदार बंदो सरता पा गुनेगार, याशा, हम मुखी साहब के ऐसा नहीं बोलते हैं, याशा तू गुना बख्शे बख्शनार, तो वो गुना बख्श सकता है। करीम हाजरी इमाम के पास सारी चीज़ें मांगते हैं, रोजी दे, ईमान की सलामती दे, अच्छी तंदुरुस्ती दे। कैसे तस्बीह की शुरुआत होती है? या अली, तो कौन है या अली? नूर है। या अली या नूर मौलाना यानी मालिक, या अली या नूर या मौलाना शाह, शहनशाह, बादशाहों का बादशाह। या अली या नूर मौलाना शाह करीम जिनरस अल हुसैनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आल में से, राइट। तो सब जगह पे जाहिर है। हमारी देखने की दृष्टि, हमारे ज्ञान से आंखें खुल जाए तो सब जगह पे अली अली है। अकाली शाह फरमा दे कि हूँ कहूँ छूँ जे काई छे ते रूहत छे, हूँ कहूँ छूँ जे काई छे ते या अली छे। तो मंसूर ने जब ये दुआ सूरह फातिहा से स्टार्ट होती है, बीच में अली अल्लाह आता है और रसूलुल्लाह का नाम लेके जो कुछ तेरे ऊपर नाजिल किया गया है तो लोगों तक पहुंचा दे। तो हमारे पे भी नाजिल होता है, एवरी डे नाजिल होता है। सच्ची बात है, हमारे घट में मौला बैठा है और हमको देता है कि लोगों तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तूने इतना करने के बाद, नमाज, हज, जकात, हज, ये सारी 4 चीज़ें करने के बावजूद भी कि मौला मुर्तज़ा अली को सही खुदाविन आलमीन जाहिर नहीं करेगा ना, तब तक तेरी नबूवत पूरी नहीं होगी। और ये खुदा ने कायनात बनाई ना, हज़रत आदम से लेके 1,24,000 पैगंबर न कर पाए, वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में मौला मुर्तज़ा अली को जाहिर किया। मौला मुर्तज़ा अली के 2 हाथ करके खड़ा किया और बोला कि उम्मत को बोला जिसका मैं मौला हूँ, आप मुझे मौला कहते हो, मालिक, जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली है। यानी आप मुझे मौला कहते हो तो आपका मौला अली है। और दूसरा क्या हुआ, आप मुझे मौला कहते हो तो मेरा भी मौला अली है। ये जौहरात है, अली ही अल्लाह है। तो ऐसा करते करते सूरह इखलास में आते हैं ना, तभी दुआ पूरी होती। इखलास यानी एकता, एक दिली। तो मौला फरमाते कि मोहम्मद और मुर्शिद क्यारे पण जुदा नहीं,
તેઓ હંમેશા એક જ છે. આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. डायमंड जुबली ने बोला ने फरमाया ना, मजबूत मजबूत एक दिल रखो कि आप में और मुझ में कोई जुदाई नहीं है. रोमे रोमे मारो शाह वसे अंतर नहीं एक तिल, એવું જાણીને ભક્તાઈ કીજે શાહ પરતક બેઠા દિલ. હજરતીમાં વાકા તુલતા ફરમાવે કે તમારા શરીરના રૂવાડા છે તે કરતાં પણ નજદીક તમારા દિલમાં અમે बैठा છે. जब फर्स्ट टाइम मैंने फरमान पढ़ा ना तो मैंने फरमान की बुक ऐसे आंखों लगा साइड में करी और मैंने मेरे रोंगटे देखे. तो मैंने सोचा इसको मैं करीब से कितना देख सकता हूँ, तो इतना करीब और आंखों को छू दिया. राइट. तो मौला ने फरमाया कि आपके जिस्म के रोंगटे हैं ना, उससे भी करीब आपके दिल के अंदर मैं बैठा हूँ. तो जुदाई तो कोई नहीं है, ये चीज़ को तो आप छू सकते हो, तो बाद में तो उससे भी ज़्यादा तो क्या हो सकता है. तो मंशूर ने जब ये सूरह इखलास पढ़ी, कुल अल्लाह अल्लाह समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल कुफुन अहद, कहे कि अल्लाह जो एक ही है और वही इबादत के लायक है, और वो अल्लाह ऐसा है बेनियाज है, वो कोई चीज़ का मोहताज नहीं, और वो अल्लाह ऐसा है कि ना उससे कोई चीज़ पैदा हुई और ना वो किसी से पैदा हुआ. तो मंशूर ने सोचा कि अल्लाह वो है खुदा कि ना उसी से कोई चीज़ पैदा हुई और ना वो किसी से पैदा हुआ, तो फिर मैं कौन हूँ फिर. तो मेरा अस्तित्व, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा वजूद क्या है. तो बोल उठा के अनल हक, मैं नहीं हूँ, वो ही है सिर्फ. और आलिम जो अच्छे फिलोसोफर जो समझने वाले बोलते हैं कि ये हाईएस्ट में हाईएस्ट हलीमी ये है जो मंशूर ने बताई कि शिर्क नहीं किया, सिर्फ खुदा ही है, और कोई है तो शिर्क है. बुतरस फरिश्ता का दाखला है कि बहुत इबादत करके खुदा के हुजूर में पहुंचा तो खुदा ने फरमाया कि बोल कौन है. तो बोला कि खुदा एक मैं हूँ, एक तू है. तो उसकी पाखें जल गई. एक सिंबल है, मेटाफोर है. पाखें मतलब खुदा के करीब जाने का रास्ता, वो अमाल हमारे इल्म इबादत बन गई. राइट. ज़मीन पे पड़ा. ऐसा बहुत बार हुआ. वो रसूलुल्लाह के पास गया तो कि एक मसला है. तो क्या मसला है, तो ये मसला है. रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तू अली के पास जा, वो तुझे इल्म देगा. तो मौला अली के पास गया बुतरस फरिश्ता, बोले ये मसला है. तो अली ने फरमाया कि ध्यान से सुन, अभी तू तेरी इबादत के बावजूद जब खुदा के हुजूर में जाएगा और खुदा पूछेगा कि बोल कौन है, तो एक ही चीज़ बोलना कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू बोलना कि तू ही है और कोई नहीं है. तो ऐसा किया तो खुदा ने उसको कबूल कर दिया. फिर सदरदीन साहब ने बोला कि तारिये तू तारण हार खुदाविन अवर न तारे दूजा कोई अली तू ही तू, तू ही. अली अल्लाह आया, पता चला आपको. तारिये तू तारण हार खुदाविन, खुदाविन बोला, अवर न तारे दूजा कोई अली तू ही तू, तू ही तू. देखो इस तरह भेद रखे है अली अल्लाह का. पहले खुदाविन बोला और खुदाविन किसको बोला, अली को बोला. राइट. फिर समद साहिब ने भी तू ही तू इबादत की, हक तू पाक तू बादशाह मेहरबान भी अली तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू. तो मंशूर ने ये, तो अली अल्लाह के ऊपर ये ईमान है. राइट. अभी नुसेरी अली को अल्लाह कहता था, समझो कि मौला मुर्तज़ा खड़े हैं बराबर और नुसेरी है, तो अली आप अल्लाह हो. राइट. मंशूर कहता था कि अनल हक, मैं हक हूँ, और करीम हाजिर में फरमाया तो हक तो खुदा है. राइट. और जब मौला ने फरमान दरखाने में फरमाया ना, करीम हाजिर इमाम ने जमात में, क्या अल हल्लाज कौन था, तो एक रूहानी बच्चे ने जवाब दिया मंशूर अल हल्लाज. उसका ज़िंदगी का मकसद क्या था, तो कि खुदा के साथ एक हो जाना. बाद में वो रूहानी बच्चा ने ऐड करके मौला को अर्ज की कि खुदा भी उसने फ़ना फिल्ला का दर्जा हासिल किया था. तो मौला ने फरमाया मंशूर अपनी सोच को इतनी ऊपर तक ले गया कि दुनियावी जो भान है ना उससे दूर हो गया. यानी दुनिया में रहता था, लेकिन जो दुनिया की मोहब्बत ये थी ना, वो इल्म हासिल करते 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 वो सारी बदियाँ ख़त्म हो गई. दुनिया की बांध से मुक्त हो गया है ना. जब पहले वो सोचता था कि मैं जिस्म हूँ, अभी कि मैं तो रूह हूँ. पड़ रही माटी उड़ गया हंसने पड़ रही माटी, जिनान में है. राइट. तो जब समझो करीम भाई है तो भाई कौन है कि करीम भाई. राइट. कल उठ के मेरे 100 साल पूरे हो जाएंगे, मेरे मैयत में आओगे तो कौन है, तो कि करीम भाई का मैयत है. तो कल तो करीम भाई थे, अभी करीम भाई का मैयत हो गया तो करीम भाई कौन थे फिर. तो उड़ गया हंस अने पड़ रही माटी, तो ये माटी है अभी भी, लेकिन इसमें चैतन्य क्यों है, कि रूह की, खुदा के नूर की वजह से इसमें चैतन्य है. राइट. तो मंशूर को दुनिया की बांध से એટલો દૂર થઈ ગયો. મોલાએ ફરમાવ્યું કે વિશ્વ વૈધાનિયત ખુદા સાથે એક થઈ ગયો. પણ મૌલાને શું કરાય કે એના જીવનનો મુખ્ય હેતુ શું હતો. मौला ने सवाल किया कि हम भी ज़िंदगी जीते हैं, तो हमारे मंशूर का ज़िंदगी जीता था तो काफ़ी सारी वो भी जन्म लिया तो माँ बाप हो गए, बीवी बच्चे हो गए, काम धंधा होगा, लेकिन मेन पर्पस क्या था उसने, कि खुदा के साथ नूर में एक हो जाना. तो करीम हाज़िर इमाम ये
फरमान फरमा के हमको बोलता है कि आपका ये मकसद है फना फिल्ला हो जाना, मेरे नूर में एक हो जाना, बराबर। तो ये पूरा दाखला फरमा के माध्यम मौला ने फरमाया कि ये फरमान फरमाने का हमारा मकसद ये है कि हमारी विचारसरणी जाहिरी नहीं है, हमारी सोच बातून है, ये समझाने के लिए हमने फरमान फरमाया। और जो रूहानी बच्चे ने जवाब दिया उसको हम बहुत मुबारकबाद फरमाते हैं, बराबर। तो ये ईमान की बात हुई, आप समझे, राइट। आपको सवाल है कुछ इसके बारे में? अभी जीव की बात है, राइट। तो देखो, अल है खुदा का एक नाम है, अल है क्या मतलब होता है? जान, जीव। तो पीर सदरुद्दीन का साहब है कि 184 जीव, जीवन जो दातार, राइट। तो 184 8.4 मिलियन जीव है, राइट। पंछी है, जानवर है, पेड़ पौधे है, समंदर के अंदर भी रहते हैं जीव है, जरासीम है जो माइक्रोस्कोप से ही देखा जाते हैं, राइट। ये सब में जीव है, राइट। लेकिन जब अक्ल आती है ना, अक्ल, तो उसमें रूह होता है। देखो अभी चूटी है ना, चूटी चलती होगी ना खिड़ी, तो आप ऐसा हाथ करोगे ना तो स्टॉप हो जाएगी, और लेफ्ट या राइट जाएगी, तो उसको कुछ अक्ल है ना, तभी वो स्टॉप हुई ना कि मेरे रास्ते में कुछ रुकावट आई, राइट। अभी चींटी को कंप्यूटर पे बिठाओगे, कोई इंसान अगर उसकी बुद्धि काम कर रही है, मेंटली फिट है, उसको मतलब उम्र लायक है, वो कंप्यूटर पे बिठाओगे, लैंग्वेज आती है तो सीखेगा, राइट। 3-6 मिनट। चूटी को बिठाओगे सालों साल तो नहीं सीख पाएगी, राइट। तो ये अक्ल के स्टेज है, राइट। तो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बोले जीव, तो मौला ने फरमाया कि रूह है, तो यानी रूह है अभी, राइट। समझो कि इसको मैं बोलता हूँ कि बोतल में पानी है, ये पहले और कोई चीज़ थी, तो मौला पहले रूह है ते તમારા આગળનો जीव है। तो वो जीवी है जो अभी रूह है, वो पहले जीव था, समझे आप। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाऊंगा आपको। तो अकाली शाह माँ बाप क्या फरमाया कि क्या સુધી તમારે દુનિયામાં રહેવું છે તે તમારો जीव मायाમાં વળગી રહ્યો છે। तो जो माया में लगा हुआ है ना, वो हमारी स्टेटस होता है ना रूह का, उसको जीव बोलते हैं। तो अकाली शाह माँ बाप ने बोला कब तक दुनिया में रहना है कि आपका जीव माया में लगा हुआ है, तो ये जीव का स्टेटस है। बाद में दिल होता है, तो दिल की हालत अलग अलग होती है, लेकिन टॉप मोस्ट बात है कि मोमन दिल फरमान, और वो हालत होती है तब उसको मौला फरमाते हैं कि मोमन हैवान के इंसान नहीं, मोमन के दिल की खूबी ऐसी है कि हम उसके दिल में रहते हैं। मोमन दिल फरमान माँ साहेब है, ये गिनान की कड़ी है कि गिनान माँ साहेब है, तब हमको एहसास होता है। अभी तो खाली हम सुनते हैं बोलते हैं, लेकिन एहसास तब होता है जब इल्म के नूर से हमारा दिल साफ हो जाए, तब ऐसा होता है कि मौला तो मेरे घट के अंदर ही बैठा है। दूर में देखो दिल माहे वसे जेम चंपा फूल माहे वास। खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस, फूल दिखाई देता है, खुशबू नहीं दिखाई लेकिन महसूस होती है, राइट। तो ये स्टेज है, जीव, दिल, रूह और नूर। हमारा रूह जब बीजी सड़क रूहनी यानी कि फिरस्तानी, तो जो रूह की हालत है वो फिरस्ताकों के ये जिस्म नहीं होता है, एक नूरानी एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं, खुदा का हुक्म बजा लाते हैं, राइट। तो वो रूह बाद में खुदा के नूर में एक हो जाता है। तो इसके लिए मौला ने फरमाया कि साले, एक वजीर साले थे हमारे जमात में, मौला ने उनका एग्जाम्पल जमात में फरमाया कि साले नूर में मिल के नूर हो गया, आप अभी उसको देख नहीं पाओगे, वो खुद ही नूर हो गया। नूर तो खुदा है, यानी फना फिल्ला हो गया। फना काई नहीं, फी अंदर अल्लाह खुदा, फना फिल्ला खुदावन तालानी जातમાં नाबूद થઈ જવું। ઈશા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયો। बाद में हमको बोला कि તમે પણ ફના ફિલ્લા થાઓ, और आसान रस्ता बताया कि भला खुदा कोण છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવો। તમે એવી ઉમેદ રાખો, તમે એવા ખ્યાલ રાખો, તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો कि અમોએ ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે। तो मौला कोई भेद खूबी बताने जा रहे हैं और हमको मतलब सचेत कर रहे हैं कि अगर अस्तगफिरुल्लाह आपके दिल में ऐसा सोच होवे ना कि हमने फरमान बेद फिजुल फरमाए, तो वो सोच निकाल दो। मौला ने फरमाया તમે એવો ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમે ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે, અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો। જેમ કે यानी इस तरह हजरत ईसा खुदाમાં ફના થયા હતા, તમે પણ ફના ફિલ્લા થાઓ। ફના કાંઈ નહીં, ફી અંદર અલ્લાહ खुदा, फना फिल्ला खुदावन तालानी जात में नाबूद थी जाऊँ, एक थी जाऊँ। तो मैंने कोशिश की मौला की मेहरबानी से आपके ईमान और जीव के बारे में। और कुछ पूछना है आपको? ये मन क्या होता है? हाँ हाँ, ये बोले सब अपना मन। तो कुंभे बांधू जड़ रहे थे, गिना ने बांधू, जो भटकता है ना वो मन है जो वो वस्त बुरी दिशे,
वस्त यानी चीज़, वो बुरी है मौला के कलाम में, जो सब जागे नजर आवे, हर जगह पे वो लगा हुआ है। ईसा पैगंबर का एक बयान है कि मोमन का रूह है ना, वो कैसे निकलता है कि मक्खन में से बाल निकालो, इस तरह निकलता है। और जो बेईमान है, जिसने गुनाह किए है, उनका रूह कैसे निकलता है? तो रेशम की साड़ी होती है ना, रेशम का कपड़ा, वो कांटे वाले झाड़ पे डालो और उसको खींचो तो कैसा होता है? गुजराती में कहे कि तातणो तातणो अलग थी जाए, राइट? तो कई जगह पे जीव लगा होता है, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, ये नौकरी धंधा, खाना पीना, घूमना फिरना। मोमन का रूह सिर्फ मौला की मोहब्बत में लगा होता है और आराम से मक्खन में से बाल निकल। तो ये जो भटकता है ना, जो स्थिर नहीं रहता है मौला की मोहब्बत में अंदर, वो उसको मन कहा गया है। कुंभे बांध्यू जड़ रहे, पानी बांध लिया, राइट? जो भटकता है उसको बांधो, वो भटक रहा है। तेम गिना ने बांध्यू मन रहे बर। तो 3 चीज़ें बताइए। कोई मन आपको समझावे, फिर सदस्य में उसको समझाओ कि मन मेरा, जब मन चढ़े अपना गर्दन पर, गर्दन के ऊपर चढ़ गया और जू चाहे तू दौड़ावे, आपके ऊपर सवार हो गया और आपको दौड़ाता है उसकी मर्जी के बल, तो कहो, मन को कहो कि मन मेरा ये राज भी है तेरा, जब तक है दुनिया वासा, कल मर जाइसी बहुत मार खाईसी, बहेस्ती जाइसी निरा। तो ये समझाया, राइट? लेकिन अभी आज समझाया, कल वापस अपना वापस कंप्लेंट करेगा, राइट? गुजरात में क्या कब पाछो बड़वो करसे, राइट? तो दूसरा स्टेज क्या है कि बांधो, गिना ने बांध्यू मन रहे। एक समझाने की बात बोला, दूसरा बांधने की बात बोला। कोई ढोर छूटू पड़ी हुई है जानवर, हम उसको बांधते हैं, लेकिन अभी बांधा है तो भी जोर लगा के छूट जाएगा। तो तीसरा स्टेज क्या बताया? मन ने मारो, उसको मारी दो। तो गुर कहे मने मरो, मन मर गया ना तो सब कुछ मर गया। पीर फरमाते हैं कि नैन भी थाकी ने बैन भी, नैन यानी आँख, आंखें भी थक गई, बैन यानी जबान भी थक गई बोल बोल के, आंखें भी थक गई देखे, पर नैन भी थाकी, बैन भी थाकी, अने जन्म भूम सगली थाकी। भूम यानी जमीन, उस पर जितने लोगों ने जन्म लिया ना सब थक गए, पर कूड़ी एक न थाकी माया, माया को कूड़ी बोला, वो ना थक गई। और वो माया नहीं थकती है तो आकालिशाમાં ફરમાયા કે આ જે મન છે ને નથી મરતું અને એટલે પાછો જન્મ લેવો પડે છે। એ મન નથી મરતું, એ મન જો મૌલાની મોહબ્બતના અંદર મરી જાય तो झूठा मरना तो सब जुग मरे, साचा न मरे कोई। आज जो मरते हैं ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट, कोलेस्ट्रॉल, वो झूठ मरते हैं। पीरों ने फरमाया साचा न मरे कोई, गुर गिना ने जे मरे। मौला के फरमान के अंदर उसकी मोहब्बत में जो मर गया, तिसे बहुत मरना न हो, उसको दोबारा नहीं मरना पड़ता है। मलकुल मौत सब पर आती है, सब बंदे की ले जाता है जान। इस मरने आगल जो मर चले, सो मरकर पावे अमर मकान। ऐसा मरना जो मर जाने, वासल हक वो कामल फ़कीर। ये दरज्जा पावे सो वली खिलावे, ये फरमाया हजरत आप अमीर। ये मरने आगे भी कुछ मरने का है, मौला के इल्म ज्ञान में मरने का है। गुर गिना ने जे मरे, मौला की मोहब्बत में मरना है। लेकिन ये इल्म सुनने के बाद हमने तय कर दिया कि हमको मौला की मोहब्बत में मर जाना है, तो मौला फरमाए कि मरना जिन्हें सच कर माना, उसे दुनिया में क्या करनी है खुशी। इस बुझ साथ, ये समझने के बावजूद भी दुनिया में खुशी कर रहे हो। इस बुझ साथ जो खुशी करे तो खुशी नहीं, ये तो है बेहोशी। पर मुल्क जाते उम्रो घटे, कोई दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उम्र घटती जाती है। हम एटलांटा आए, 1 2 4 3-4 दिन रहेगा, राइट? बाद में आपा बोले कि करीब भाई रुक जाओ। बोले नहीं भाई, हमारा बिजनेस है, बीवी बच्चे सब वहाँ, हमको जाना है, ये हमारा गाँव नहीं, हमको वहाँ जाना है, राइट? तो मौला ने फरमाया कि किने बताया कि ये मुल्क है तेरा? किसने बताया तुझे? तू यहाँ पे दिल लगा के बैठा है तो किसने बताया? मौला के मैंने तो नहीं बताया। मौला ने क्या बताया कि तमारू घर आ दुनिया में कच्छ, काठियावाड़, मुंबई, विलायत बीजे क्यांय नहीं। तमारू घर अमारा दिल में है ने अमारू घर हमेशा तमारा दिल में है। अमारो दिन सीधी सड़क जेवो छे, ते पर तमे सीधा चाल्या जशो तो तमे तमारे गाम। बाद में मौला ने उसकी डेफिनेशन दी कि आपका गाँव कौन सा है? तमे तमारे गाम એટલે કે અસલ નુરાની મકાને જય પોષ્યો, ये हमारा मकान है। आपने मुझे खाने बोला, करीम भाई कहा कि बोला असल मकान क्या है। तो 6:15 6:10 हो गई है, तो अभी 10-15 मिनट यहाँ होगी, जमात खाने टाइम से पहुँच जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछो, मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ आपके सवालों जवाब है, लेकिन एक चीज़ का मैं बोल सकता हूँ कि मेरा दिल मौला की मोहब्बत इल्म से भरा हुआ है, और एक ही मकसद है ज़िंदगी का कि सबका दिल मौला के नूर और मोहब्बत से भर दो। तो यही मौला ने ये ईमान दिया है, ये
तो उसी उसी की वजह से सारी बरकत है, रोशनी है, और वही करता है। अकाली शमाब ने फरमाया कि आपसे जो कुछ भी अच्छा काम होता है तो आप ये मत समझना कि आपने किया है, वो मौला मुर्तज़ा अली की ओर से खुद ब खुद होता है। और जो गुनाह के काम, ना अमली के काम होता है, वो आपकी कम मति से, आपकी कम बुद्धि, आपके गुनाह से होते हैं। तो हमको क्या ध्यान रखा है कि मोमनना ख्याल, विचार, बातून सर्वे साफ જોઈએ, કાંઈ પણ એમ ના જોઈએ, राइट। तो वो बोलते हैं ना कि भाई आग लगी है तो धुआं उड़ता है ना, तो हमने कुछ ऐसा किया है तभी धुआं उड़ रहा है, राइट। तो हम बराबर ध्यान में रखें कि भाई कहाँ हमारी भूल हो रही है, राइट, कनेक्टेड रहे हमारे रूह के साथ। तो मैं दुआ करता हूँ आना आप, राइट। तो अभी हम जमा खाने गए तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, तो इत्मीनान से सुनना। और लेट हो जाएगा। रात को है ना टाइम बोलो जल्दी। ये जो गुलजार आपा है ना, इनके घर पे है, और यदि आप टिकेटर में हो ना, हाँ कैरिज प्लेस में तो अगर आप ये जमात खाने जाते हो ना शाइन, ये वाले टिकेटर, तो फिर आपको फौरन ही वहीं पर है, तो आपको 1 घंटा आना जाना बच जाएगा। अभी 1 घंटा जाना और वापस आना है, अटेंड कर लो मम्मा। तो आप जमात खाना ये अटेंड कर सकते हो। फिर अपना दुआ 7 बजे की है तो 7:45 बजे अपन हाँ। 8 बजे, 8 बजे का टाइम रखा है, लेकिन लगभग 7:45 बजे पहुंच जाएंगे। 7:45 बजे तो पहुंच जाएंगे ना घर पे, 7:45 बजे स्टूडेंट मजलिस है तो थोड़ा सा स्टूडेंट 8 समझो ना। अच्छा ओके। तो आप वो कोई मतलब यहाँ से फिर डिकेटर से मेरा फिर आपको जमात खाने पे छूट के वो 1 घंटा मेरे घर 1 घंटा ओके, अच्छा 1 घंटा में जाऊँगा 9 बजे अगर फारिग हुई तो 10 साढ़े 10 बजे हाँ 10:30 तो बजेंगे आपको। हाँ तो आप देखो, जब जब इल्म सुनते हैं ना, और जब दिल पाक और साफ होता है, इतनी मोहब्बत होती है ना, तो दिल नहीं मज़ा आ रहा है। तो क्या होता है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, राइट, और हम काफ़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, राइट, और उनकी सोच में हमारी सोच में थोड़ी फ़र्क होता है, राइट। तो हमको आगे करना है भी, राइट। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो वो लंबे टाइम का सोच के हमको अक्ल होशियारी से काम लेना है, राइट। हम तो फ़कीर है, दरवेश है, हमको तो कुछ लेना देना नहीं आया है, मस्त तो 3 दिन रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो आपको भी घर पे जाना है और आना है, राइट। तो आप अपने ग्रुप में देख लेना, उसमें सारी एड्रेस वगैरह, टाइम वगैरह सब दिया हुआ है, राइट। तो अभी है हम 3 दिन, राइट। फोन में सुन लेना भाई, कैसे 3 जन अपने लाइन हाँ, लाइन आप घर आपका नंबर मैं आपको लगा दूंगा, म्यूट करके सुनना। नहीं, घर पे प्रॉब्लम नहीं हुए, घर पे प्रॉब्लम नहीं हुए, रात માટે આપણા ગ્રુપમાં ગુલજારનો એડ્રેસ नहीं, घर पे प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ज्वाइन करना है। तो चलो भाई, नो मोर डिस्कशन, मोड़ू था जमा करने जवान। तो 8 बजे है लगभग इनके घर पे, और ग्रुप में देख लेना, टेक्स्ट वगैरह, एड्रेस वगैरह है। आपको आना तो आप आ सकते हो, और सुनना है तो मुनीर आपा को फ़ोन करना, वो आपको लाइन लगा के देंगे, बराबर। अभी हम थोड़े શું कह रहा क्या केવું તું? ના મેં કીધું કે આપણે ગ્રુપમાં નાખી દઈએ કે હમણાં ગુલજારને ત્યાં છે એટલે हाँ, રાતના राइट, પછી वो બધા ग्रुप में डाल देंगे। ગુલજારનો એડ્રેસ બી નાખી દઈએ, ये ड्राइव करता કરી देजो, गाड़ी में કરી देजो। બધા નીકળી ओके, આપણે थोड़ा फरमान मुबारक सांभળીએ, 5-8 मिनट लगेगी, और दुआएं देते, बाद में लंबी 40 पूरी करते हैं। सॉरी आपा, तो टाइम कम था, तो मैंने कोशिश किया जितना समझा पाता था, लेकिन आप इत्मीनान से सुनना, और जब भी कुछ होवे तो आप वॉइस मेल छोड़ देना, मैं सुनूंगा आपका वॉइस मेल। सवाल होगा तो इलम मिजारिस में मैं किसी का और जगह का नाम नहीं लेता हूँ, राइट। सबको लाभ मिलता है, राइट। आप ही जैसे दूसरे को सवाल होते हैं, और दोनों आपा से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू, बहुत सब्र से प्यार से सुना। बहुत कम बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि एकदम ध्यान से सुनते, बीच में कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है। एक सब्र होनी चाहिए इलम सीख ले, राइट। તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે અમારા અજીજ ગણીએ છીએ। આ બધો ઈશ્ક તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે। અમે તમારા તરફથી ઈશ્ક ઈચ્છીએ છીએ, તેથી તમને સારો રસ્તો દેખાડીએ છીએ। જે માવિત્ર પોતાના બચ્ચાઓનો હાથ જાલીને ચલાવે છે, તેમ અમે તમને ચલાવીએ છીએ। જુઓ, આવો મોટો દરિયો છે, તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે। તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ, તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છીએ। અમે અહીં આવ્યા છીએ તે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ। ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે। અમારું દિલ ચાહે છે કે અમે હંમેશા તમારી પાસે રહીએ। જાહેરની જુદાઈ ઘણી સખ્ત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાતુનમાં અમે અને તમે જુદા નથી। બાતુનમાં અમે હંમેશા તમારી પાસે છીએ। અમે અને તમે એક છીએ। હંમેશા અમે અને તમે જુદા નથી। તમે અમારા મુરીદ, અમારી હકીકતી औलाद માફક છો। મુરીદ તથા મુર્શિદની દરમિયાન કાંઈ પણ જુદાઈ નથી। મોમન અને મુર્શિદ ક્યારેય પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે। એવી રીતે દિલ હંમેશા મજબૂત કરી એક દિલ રાખવું જોઈએ। તમે અમારો ઇશ્ક રાખો છો અને અમે તમારો ઇશ્ક રાખીએ છીએ।
ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવળો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે. ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ. આ દુઆ સગળી દુઆ કરતાં વધારે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા ફરમાન હંમેશા દિલમાં રાખજો, ભૂલી નહીં જશો. એમ ન બને કે જ્યાં સુધી અમે જાહેરીમાં અંતરે હાજર છીએ ત્યાં સુધી અમારા ફરમાન વાંચો અને પછી ન વાંચો, એમ નહીં થવું જોઈએ. જેમ જ્ઞાન વાંચો છો તેમ અમારા ફરમાન વાંચજો. જેમ જ્ઞાનની માયના કાઢો છો તેમ અમારા ફરમાનની પણ માયના કાઢજો. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં, હદીસમાં, કુરાનમાં છે. તેથી 100 ગણું અમે તમને ફરમાન દ્વારા સમજાવીએ છીએ. હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. અમારા મોમન સારું એક ફરમાન જ બસ છે. અમારા સીધાવ્યા બાદ એવું નહીં સમજતા કે સાહેબ સીધાવી ગયા. જેમ તમે ઇમામને હાજર સમજો છો તેમ હાજર સમજજો. હાજર ઇમામ જાહેરીમાં હંમેશા હાજર નથી બેસી રહેતા, પણ તેઓને હાજર સમજવા જોઈએ. અમે પણ હંમેશા તમારી પાસે બેઠા છીએ. અમે તમને સૌને એ ખાતરી આપવા ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી નજીક છો અને હંમેશા અમારા હૃદય અને વિચારોમાં છો. અમે જગતભરના ઇસ્માઇલીઓની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે અમારી જિંદગી અર્પણ કરી છે અને તમારા સર્વે સુખ અને સફળતા માટે દુઆ કરીએ છીએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તમે સુખી હો, તમારામાં શક્તિ હોય, તમારામાં સંપ હોય, તમારા દિલોમાં પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા હોય, તેમજ તમારામાંના દરેકે રૂહાની સંતોષ ધરાવતા હોય કે જે તમને તમારા જીવન દરમિયાન તમને દોરવણી આપે, ભલે તમારા સંજોગો જે પણ હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સફળ હો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન, ખાના વદાન. આજે સાંજે અમે સીધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે 2 બાબતો યાદ રાખો. એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેકની યાદ, દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું. બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે કરતાં અમારી જમાત માટેનો અમારો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે એ યાદ રાખો કે જ્યારે અમે સીધાવીશું ત્યારે તમારામાંના દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં અને અમારા વિચારોમાં હશો. વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે. તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતાં ઘણું જ વધુ ચાહે છે અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન, ઉત્તમ દુઆ આશીષ, ખાના વદાન. હાજરીન તમામ ઇલમ મિજલસના ભાઈ બહેનોને અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજરીમાં સુખી સલામતને આબાદ રાખે. ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે. બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે. બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે. બધાની કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે. મોલા બચ્ચાઓનું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. મોલા બચ્ચાઓની બધી મુશ્કેલીઓ આસાન કરે. મોલા બચ્ચાઓની ખિદમત કબૂલ કરે. મોલા આપણા બચ્ચાઓની જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલીઓની મોલા પોતાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની ખિદમત કબૂલ કરે. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે. ખિદમત દરમિયાન કોઈ પરક કસોટી ના નાખે. વધારે ખિદમત કરવા માટે મોકા આપે. મોલા વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ, પ્રેરણા આપે. મોલાએ મહેરબાની કરી, કરમ બક્ષી ફરમાવી, દયા કરી. મોલા પોતાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની ખિદમત, આપણા બચ્ચાઓની, જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલીઓની ખિદમત મોલાએ કબૂલ કરી. કોઈ પરક કે કસોટી ના નાખી. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો. વધારે ખિદમત કરવા માટે મોકા આપ્યા. ખિદમત કરવા માટે હિંમત અને શક્તિ, પ્રેરણા આપી. આપણે મૌલાના લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ. શુક્ર હમદુલિલ્લાહ. મૌલા કરમ બક્ષી ફરમાવી, મહેરબાની કરી, દયા કરી, દરેકના કુલ ગુનાહ માફ કરે. ધંધા રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે. કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે. દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે. બધાની કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે. ઇલમ મિજલસના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં, ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, જમાતમાં સંપ, સલાહ, ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે. લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે. આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે
ત્યાં સુખ, શાંતિ, સલામતી અને આબાદી ફેલાવે. આપણા દિલ, નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે. ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે. હકીકતી સાચી સમજ આપે. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. આ જન્મમાં જ આપણને મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે. હાજરીન તમામ ઇલ્મ ઇજલસના ભાઈ બહેનોના, ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના, અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજરીમાં કુલ ગુના માફ કરે. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. તમારો ઘણો આભાર. શુક્ર મૌલાના. આપણા બધા મૌલાના શુક્ર કે